اور دوسرا میرے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ ناموس کیا ہے اور ختم نبوت کیا ہے؟ ذرا وضاحت سن لیجیے۔ میرے آقا تاجدار کونین علیہ السلام کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کے مقام، آپ کی شان کا تحفظ، اس کو ناموس رسالت کہتے ہیں، اس کو عزت رسول کہتے ہیں۔ دنیا بھر کے تمام غیر مسلم اغیار اس بات کے درپے ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے فلمیں بنتی ہیں، خاکے بنتے ہیں اور مختلف قسم کے آرٹیکل لکھے جاتے ہیں۔ آقا کی ناموس کے خلاف اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ظاہر بات ہے میرے آقا کی شان تو گھٹنے والی نہیں، میرے آقا کا مقام تو دبنے والا نہیں۔ ہاں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے، سایہ تجھ پر بول بالا ہے، تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ سبحان اللہ، ذرا اونچا کر کے آنکھوں چاہ کونا کونا چنگا تکڑا کر کے آنکھوں سبحان اللہ۔ یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو دوستو یہ تو ان کا خواب خیال ہے، لیکن پھر امتحان کن کے لیے ہے؟ جب وہ گستاخی کرتے ہیں نہ کوئی دبا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے۔ امتحان امت مسلمہ کے لیے ہے کہ غیرت کس کے اندر موجود ہے، آقا کے لیے طلب کس کے اندر موجود ہے، کون روتا ہے، کون جلتا ہے، کون کڑتا ہے، کون آواز اٹھاتا ہے۔ پوری دنیا عالم اسلام کے مسلمان حکمرانوں میں سے ایک شخص جو ترکی کا ہے، اس کو ہمت ہوتی ہے، وہ آواز اٹھاتا ہے، باقی گنگے ہیں، بہرے ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اور اپنا سب کچھ یورپ کے ایوانوں میں بیچ چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ اے عوام تمہارے اندر غیرت ہو تو ہو۔ امت مسلمہ کے حکمران اپنی غیرت اور ایمان کا سودا کر چکے ہیں، لہذا اس بات کے لیے انہیں غیرت آنے کی نہیں۔ اب بات عوام کی ہے کہ عوام کے اندر بھی مختلف طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، عزت رسول پہ پہرے دیں گے، ہم کسی گستاخ کو اپنے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے خلاف زبان نہیں کھولنے دیں گے، نہ قلم چلانے دیں گے۔ ایسے لوگوں کا جیرن اجیرن ہو جاتا ہے جینا، کیونکہ آقا کریم کی گستاخی بھی ہو رہی ہے اور ہم بھی دنیا میں زندہ ہیں، یہ لوگ گوارا نہیں کر سکتے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جناب والا ہر ایک کو اپنا آئینی حق حاصل ہے، یہ جو ہے سوچ ہے، جو مرضی آئے من میں لکھے، جو مرضی آئے، یہی تو صحافت ہے، آزادی رائے ہے، اور اس طرح کے نام دے کر کے وہ غیر مسلموں کا ساتھ دیتے ہیں اور آقا نبی پاک علیہ السلام سے غداری اور حضور علیہ السلام سے بے وفائی کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہی امتحان ہے۔ صحابہ کرام کے لیے امتحان یہ تھا کہ کوئی تختہ دار پہ کھڑا ہے، کوئی کولوں پہ لیٹا ہے، کوئی پتھروں تلے لیٹا ہے، کوئی ریت پہ لیٹا ہے۔ آج امتحان یہ ہے کہ جب آقا کی گستاخی ہو، غیرت کون کھاتا ہے اور بغیرتی کی تصویر کون بن جاتا ہے۔ یاد رہے جن کو میرے آقا نبی پاک کی اہانت اور توہین پر اور ختم نبوت کے حملوں پر غیرت نہیں آتی، وہ اپنے ایمانوں کا سودا کر چکے ہیں، اس مرائی میدان کے اندر ناکام ہو چکے ہیں، نامراد ہو چکے ہیں۔ اور جنہوں نے آقا کی عزت و ناموس پہ پہرے دیتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر عزت رسول پہ پہرا دیا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کا مشن اور ولولہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ مصطفیٰ کے دیوانے نظر آئیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سامنے محترم میں کچھ عرض کر رہا ہوں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی غیرت کے دو تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بندہ ہو، چاہے اس کی صورت مسلمانوں والی ہو، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، چاہے وہ انگریز ہو، چاہے وہ فرانس سے ہو، چاہے وہ امریکہ سے ہو، چاہے وہ برطانیہ سے ہو، جو بھلا بھی ہو، اگر وہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا گستاخ ہے،
बेअदब है, वो हमारा दुनिया का बदतरीन दुश्मन है। हमारे दिल में उसके लिए नफरत है, नफरत है, नफरत है। चाहे वो हमारा करीबी हो, चाहे हमारा वो दूर का हो, जो आका नबी पाक का दुश्मन है कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। लिहाजा अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह रसूल के लिए, दोस्ती भी अल्लाह रसूल के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह रसूल के लिए, ये मोमिन का म्यार होना चाहिए। मेरे भाइयों, में तकरीर नहीं कर रहा, मैं आपको ईमान का सबक पढ़ा रहा हूं। हमारे ईमान कमजोर हो चुके हैं, हम सिर्फ दुनिया के लिए लड़ते हैं, हम दौलत के लिए मरते हैं, रिश्तेदारों के लिए कुड़ते हैं, हम अपने खानदान की गैरत के लिए मरते और जलते हैं। लेकिन इज्जत रसूल की बात आए तो हम कहते हैं ये मौलवियों का, जिसने मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, नामूस रिसालत, इज्जत रसूल, उसका सबसे अहम मसला है। लिहाजा अगर अपने ईमानों को जिला देना चाहते हो, ईमानों को बहार देना चाहते हो, तो आज ये फैसला करके जाओ, हमारा जीना भी मुस्तफा के लिए है, हमारा मरना भी मुस्तफा के लिए है। जो आका का प्यार करता है हम उसके नौकर हैं, जो नबी का दुश्मन है हम उसको पांव की ठोकर में रखते हैं। ये हमारा वलवला, ये हमारे ईमान का तकाजा है। दूसरा तकाजा खैरात का ये है, आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का मसला है। हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मुल मुरसलीन है। आपके बाद दुनिया में क़यामत तक कोई नया नबी आने वाला नहीं है। यूं दो उंगलियों को मेरे आका ने मिलाया, फरमाया अना वसा कहातैन, मैं और कयामत इन दो उंगलियों की तरह जुड़े हुए हैं। इस तरह दो उंगलियों के दरमियान कोई तीसरा नहीं है। मेरे और कयामत के दरमियान कोई नया नबी आने वाला नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, आप नए नबी बन के नहीं आएंगे, बल्कि आप नबी करीम अलैहिस्सलाम से पहले नबी हो गुजरे हैं। आप दुनिया में आए, 33 साल अपनी जिंदगी के बसर किए, अल्लाह जल्ल शानहू ने आपको जिंदा आसमानों पे उठाया और कुर्ब क़यामत में आप दोबारा दुनिया में नुज़ूल फरमाएंगे और मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम का अपनी उम्मत को कलमा पढ़ाएंगे। आप नए नबी नहीं हैं, बल्कि आप पहले नबी हो गुजरे हैं। तो लिहाजा अब क़यामत तो आ सकती है, नया नबी आ सकता नहीं है। इस अकीदे की अहमियत क्या है? याद रखो, जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम को नबी मानना जरूरी है, आपको आखिरी नबी मानना जरूरी है। जिस आका करीम को नबी ना मानने वाला मुसलमान कतन नहीं हो सकता, उसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी ना मानने वाला भी मुसलमान कतन नहीं हो सकता। अगर कोई अकीदे के अंदर शक भी करे कि यार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो भी मुसलमान नहीं है। ईमानियात का मसला शक और शुबा पे नहीं है। मबनी दोस्ताने गिरामी, हमारे जितने ईमानियात हैं, मसलन अल्लाह पाक वाहदहू ला शरीक है, अगर कोई जात पर शक करता है कि है या नहीं है, ईमान नहीं है। दोस्ताने गिरामी, अगर कोई कयामत पे शक करता है, ईमान नहीं है। अगर कोई कुरान के किताबुल्लाह होने पे शक करता है, ईमान नहीं है। यहां शक की बात नहीं होती। ईमान पाक को कहते हैं। ईमान किसको कहते हैं? पाक को कहते हैं। और ईमान का सारा ताल्लुक गैब के साथ है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, तुमने देखा भी नहीं है और ईमान लाना है। बस मेरे नबी ने जो कह दिया तुमने उस पर ईमान लाना है। आका करीम की जबान पर ईमान लाने को ईमान कहते हैं। यही ईमान बिल गैब है। आप बात सुनिएगा, आका की खत्म नबूवत का मसला। सामने मोहतरम, मेरे आका नबी करीम का इरशाद है, सयकून फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबूना, मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे, दज्जाल पैदा होंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन, हर एक ये दावा करेगा कि मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। अला, फरमाया गौर से सुन लो, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अना खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना के भेजा है। आते रहे मिटते रहे, आते रहे मिटते रहे, आते रहे मिटते रहे। मिर्जा कज़्ज़ाब, मिर्जा कादियानी, इसको अंग्रेज ने पाला पोसा, अंग्रेज ने पढ़ाया, अंग्रेज ने दावे कराए, अंग्रेज ने दौलत लुटाई और लोगों को खरीदा और ईमानों के सौदे किए। बहरहाल तहरीक खत्म नबूवत, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत 1954 में चली, 1974, 20 साल की कोशिश के बाद इसमें 10,000 जानें कुर्बान हुई हैं। इसमें जेलें हुई हैं, उलमा को, मशाइख को जेलों में डाला गया है, तख्तेदार तक पहुंचाया गया है। बहुत कड़ी मुश्किलों के बाद अल्लाह
अल्लाह पाक ने मंजिल अता फरमाई और पाकिस्तान में ये आइन पास हुआ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का। इसका मतलब क्या है? नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत, मैंने दो बातें की हैं। पहले मैंने मुख्तसर इशारा, नामूस रिसालत ये आइन पाकिस्तान है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखे, अगर वो मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ नाज़ेबा कलिमात तहरीरन तकरीरन इशारतन किनायतन इस्तेमाल करता है, 295C के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा, गवाह लाए जाएंगे और गवाहों के बाद उसको सजाए मौत सुनाई जाएगी। ये 295C है जिसको तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कहते हैं। दूसरा आइन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है। इसका मतलब ये है कि जो मेरे आका करीम की ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं रखता, बिलख़ुसूस मिर्ज़ा कादियानी के मानने वाले, जो उसको मुसलमान मानता है या नबी मानता है या उसके कुफ्र में शक करता है, वो कादियानी है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है। और उनका फिर शनाख्ती कार्ड के अंदर अलहदा खाना रखवाया गया मजहब का, मजहब इस्लाम है, हिंदू है, सिख है या मिर्ज़ाई है, अलहदा मजहब करार दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सी शिकें हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का आइन है। ये दो आइन हमारे माथे के झूमर हैं सामीन मोहतरम, और गैर मुस्लिमों को ये आइन कतान गवारा नहीं होते। कुर्सी इक़्तिदार पे जो भी बैठता है, पहले उससे गैर मुस्लिम कौमें ये वादा लेती है कि जब बैठोगे तो उसके बाद ये दो कवानीन बदल के दिखाओगे। वो पहले अहद करते हैं, फिर बदलने की कोशिश करते हैं। हर दौर के अंदर जब इन दो आइनों में से किसी एक आइन को बदलने की कोशिश की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले सरों पे कफन पहन के गली कूचा बाजार में आए हैं और जिन्होंने कहा है हम जान दे देंगे, आका की इज्जत रसूल पे हमला नहीं करने देंगे। ये रास्ता रिवायत बुजुर्गों के यहाँ रिवायत हाजी साहब ने मैं फी जमाना चैलेंज की बात कर रहा था, तो फी जमाना हमें क्या चैलेंज है? बड़ी तवज्जो दीजिएगा दोस्तान गिरामी, हम तो किसी सियासी ओहदे पे नहीं बैठे, हम किसी बड़े ओहदे पे नहीं बैठे कि हमें चैलेंज हो। हमें चैलेंज ये है दोस्तान गिरामी, बड़ी तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा। पहले मैंने आका नबी पाक की नामूस के हवाले से कि हमारे सीने में गैरत होनी चाहिए हुजूर की इज्जत के लिए, आपकी नामूस के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। अब जनाबे वाला हम दूसरी गुजारिश करने जा रहे हैं कि हमें खत्म नबूवत के हवाले से चैलेंज क्या है। पहली बात ये है कि मेरे आका ताजदार कौनैन सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा सुभान अल्लाह खोजत गल्ला न करे तकरीर जारी। सुभान अल्लाह। मेरे आका नबी